भारत माता। थैंक यू सर। जय हिंद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। Thank you so much, sir. Sir, I've now tuned my mind to a 3-minute speech, and I'm always afraid of the buzzer. So I'm happy that today there would be no buzzer and I'll get to speak my mind, but I will try and keep it short. Sir, I would like to take this opportunity to thank my party leaders, Shri Uddhav Sahib Thackeray ji and Shri Aditya Thackeray ji, for giving me a chance to speak for the party in the parliament. My party colleagues and floor leaders of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha for this support always. To all the lovely people I have met in the Lok Sabha and Rajya Sabha, it will be next to impossible to name names because it would take more than 10 minutes to even count the names of people I've encountered, I've learned from, I've experienced. Thank you so much. Yes? Thank you. I learned from you. And to Jayaji, my friend and my senior colleague, I dare not control you. To all the front rows, seated in the front rows, the senior floor leaders, cabinet ministers across the aisle, thank you for your positive support and motivation always. And I'm actually overwhelmed when all the floor leaders mentioned my name and the contribution that in itself speaks for my term being a successful tenure, sir. To friends who became family, the memories I carry of this chamber, I will cherish forever. To the chairs past, especially Venkaiah Naidu ji, I remember Venkaiah Naidu ji, if he used to like something or like someone speaking and they were speaking on a certain issue-based, something which was important to the parliament, he would extend our time too. So I really miss Venkaiah Naidu ji at times. JP Dhankar ji, because he was quite a strict administrator. And now yourself, sir, you've been very kind and you've been very generous. I express to you all my gratitude. To Leader of the Opposition, Kharge ji, there's so much I have learned from him. His untiring effort to be in the parliament and to continue to be an active contributor to the parliament, I have learned from. To Leader of the House, Nadda ji. Nadda ji has been a graceful presence in the House, and his role as the Leader of the House has been very kind, sir. And I continue to hope that I will have their blessings in times to come. To the entire Rajya Sabha Secretariat, Shri P.C. Modi ji, the support staff, Deputy Chairman Harivansh ji, and panel of chairpersons, my extreme gratitude, sir. So I remember when I was suspended during one winter session, I was very angry. And Venkaiah Naidu ji was missing at that time. So I went to Harivansh ji and I had so many things to say to him. So I have only learnt after that, and I have learnt how to also ask for a humble apology for what I said at that time. So I take this moment to thank my children and my husband for being the wind beneath my wings, sir. So a word of thanks to the media, and since John Brittas mentioned the parliamentary photographers, it is just a pause. I shall be back, and they will get busy as ever, sir. So the photographers, the beat reporters, I want to express them deep gratitude. And as much as they may miss me, I shall miss them too, sir. To the people of India, and the immense support I have received ever since my term did not get renewed, I have got lots of love and support across social media from across party lines. So that has been indeed extremely overwhelming, but also made me happy. I had the opportunity, sir, to participate in the passing of the historic Women's Reservation Bill. I could end up becoming one of the beneficiaries of returning to the parliament, indeed through that reservation bill, sir. So again, I'm grateful for that opportunity as well. Sir, before I take my seat, I wish to read a few lines from my father's message to me when I completed my tenure, when he got to know I will not be renominated, which has also been the philosophy of my life, sir. This would be in Hindi. Jeev gatiman hai aur jad sthir hai. Jeev ka dharm hi gati hai. Charevati charevati. इसका स्थान ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेगा, जिसे भगवान बुद्ध ने करके दिखाया। अतः हम जहां कल तक खड़े थे, आज उससे अलग स्थान की ओर अग्रसर हों और पिछली जगह के प्रति ना मोह रखें, ना आसक्ति भाव। यह मोह और आसक्ति हमें हमारे लक्षित गंतव्य तक पहुंचने से रोकते हैं। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम रामराज तक ही ठहर जाते, तो रावण का नाश कैसे होता। मानवता के उद्धार से गतिशीलता का गहरा संबंध है, और गतिशीलता का त्याग से। इसके बारे में ईशावास्योपनिषद में लिखा है, तेन त्यक्तेन भुजिता माग्रधम कस्य स्वधम धनम, अर्थात
यह जगत परमेश्वर का है। इसी भावना के साथ जो बिना किसी आसक्ति से आगे बढ़ता है वही उसे पाता है। जो जीवन को इस प्रकार बढ़ता है वही अपने उद्देश्यों को पवित्रता के साथ उसे पाता है। इस बारे में बड़ी सुंदर एक लोकायुक्ति भी है सर। बहता पानी निर्मला, सुथरा होए सोए, रुका हुआ तो गंदा हो, जो पाला होए सोए। Flowing water is pure, stagnant water becomes dirty. इस प्रकार से हम हमारे साध्य और साधनों में पवित्रता रखते हुए आगे बढ़ें, जिसमें भगवान भी सहायक होंगे। सत्यमेव जयते। जय हिंद सर। थैंक यू। डॉक्टर वी शिवदासन जी। श्री संजय देशमुख। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं महाराष्ट्र के यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो विदर्भ में अत्यंत संवेदनशील और किसान आत्महत्याओं से प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के किसान आज भी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके मुद्दे केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों परिवार के जीवन, उनके अस्तित्व और भविष्य से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यवतमाल जिले में हो रही किसान आत्महत्याओं के अत्यंत गंभीर मुद्दे को इस सदन में ध्यान में लाना चाहता हूं। इस विषय पहले भी मैं कई बार उठा चुका हूं, लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यवतमाल जिले में इस वर्ष केवल जनवरी महीने में 22 किसानों ने आत्महत्या की है। इस आंकड़ों के पीछे एक उजड़ा हुआ घर है, एक परिवार है, एक माँ है, एक पत्नी है और अपना भविष्य खो चुके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं स्वयं कई बार ऐसे परिवारों से मिला हूँ। जब कोई किसान आत्महत्या करता है तो उसके घर की स्थिति देखकर मन व्यथित हो जाता है। घर का कमाने वाला व्यक्ति अचानक चला जाता है तो पूरे परिवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। महिलाओं के आंखों में आंसू होते हैं और बच्चों के चेहरे पर एक सवाल होता है कि अब हमारा क्या होगा। इसका जवाब कौन देगा अध्यक्ष महोदय। जब किसान चला जाता है तो घर में सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। माँ के आंखों में आंसू और बच्चों के चेहरे पर एक ही सवाल रह जाता है। वो पूछते हैं पापा क्यों चले गए, लेकिन इस सवाल का जवाब किसके पास रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या विदर्भ के किसानों की जान इतनी सस्ती हो गई? आज विदर्भ का किसान कर्ज, फसल की विफलता, बाजार के अस्थिर कीमतों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानसिक तनाव में जी रहा है। केवल आंकड़ों प्रस्तुति करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हर आत्महत्या के पीछे एक टूट चुका हुआ परिवार, एक विधवा और अनाथ बच्चे होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में किसानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज, कर्ज माफी और आय की गारंटी जैसे ठोस व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। जिस मिट्टी ने इस देश का पेट भरा, वही किसान आज रो रहा है। जिस हाथों ने खेतों में सोना उगाया, वही हाथ आज कर्ज में डूब रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यवतमाल वाशिम क्षेत्र में 2022-2025 के बीच में जंगली जानवरों से हमले में 20 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई। इस घटनाओं में कई परिवार के अपने घर के कमाने वाले सदस्य को खो दिया। उसके सामने जीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया। लेकिन अत्यंत दुख की बात है कि इस 20 मामलों में केवल 7 मामले ही सरकार सहायता स्वीकृत की गई है, जबकि 13 परिवार अब भी सहायता से वंचित है। यह अत्यंत अन्यायपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जंगली जानवरों के हमले में घायल और स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्ति को, परिवार के बच्चों को शिक्षा का पूरा खर्चा सरकार उठाए और अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही जिन किसानों ने फसलें की जंगली जानवरों से द्वारा नष्ट हुई है, उनको उचित राशि दी जाए और किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन विकास और ऊर्जा कुंपन योजना की सीमा 15,000 रुपए से प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति लाभार्थी की जाए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आज सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों को सिर्फ सहानुभूति नहीं, न्याय चाहिए। किसानों को सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। क्योंकि सब किसान हंसता है तो देश समृद्ध होता है और जब किसान रोता है तो पूरा देश कमजोर होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि माँ की खांसी, घर की उदासी, बिजली का बिल, जलता दिल, बर्तन है खाली, भूख की गाली, बेटी की शादी, शादी में दहेज, नहीं मुझे इन बातों से परहेज,
मैं जानता हूं कि ये सब करना है तो एक बाप का फर्ज है, मगर क्या करूं, मुझ पर अब तक बाकी पिछले साल का कर्ज है। क से किसान, क से कपास, क से कर्जा और क से कफन हो रहा है। इसका क के खेल में विदर्भ का हर किसान दफन हो रहा है। हमारे जो किसान है, विदर्भ के किसान, वो कपास उगाते हैं और वो चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मैं उगाता हूं कपास तो सारी दुनिया कपड़े पहनती है, फिर मेरी ही लाश क्यों आखिरी एक कफन के लिए तरसती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। श्री धैर्यशील मोहिते।